Hello, friends, and welcome to another edition on this program called Viewpoint with Sajal. So, people, quickly, just to summarize the entire day, I would like to put across my viewpoint, like I always do, and to make you people also contribute into it. Think, analyze, comment, like, dislike, argue, whatever you may want to do, you can do. So today it's been an eventful day in the politics that is happening in the state of Uttar Pradesh for the upcoming polls. We saw people, we've been watching people, switching loyalties, running from one party to the other one to the other one, and so many things have been happening. But today it was like, a kind of a bombshell that actually came down when we saw the daughter-in-law of Mulayam Singh Yadav switching her loyalty towards the Bharatiya Janata Party or the BJP. I mean, we have been watching and seeing that there were about so many cabinet ministers, MLAs. They have been switching sides from the BJP and going to the Samajwadi Party. But here we need to understand one thing. I mean, these are the guys who are like job hoppers. I don't know how many of you may relate that with job hoppers. These are specifically the ones who join an organization, work there for a short while, and then they're looking for another job. Maybe because, and that is purely for their individual or their vested interest. So, this is what has been happening. Similarly, on those very same lines, these politicians like Swami Prasad Maurya and the gang, they have been doing the same. They came to BJP in the polls of 2017 from BSP. Then they are now running to. I mean, they enjoyed the entire 5 years being on the ranks of cabinet ministers or the ministers or whatever. They enjoyed the entire thing, and now they have shifted their gears to Samajwadi Party. But I call a real shift. I call the real shift what today happened in terms of Aparna Yadav. Now, the moment Aparna Yadav, joined BJP and she was overwhelmingly mentioned, not only mentioned, but welcomed as well. Akhilesh Yadav went into a huddle and he conducted a press conference wherein he made two statements. One, the first one was that, all right, so now Samajwad would be spread or shared or, would be introduced in the BJP. That was the first statement. The second statement that he made that Mulayam Singh Yadav did try to pacify her and retain her into the Samajwadi Party, and to which she did not listen, or she did not adhere to, or she did not agree to. Allow me to give you a little bit of a background in the entire family. Mulayam Singh Yadav and Aparna Yadav, they share a very close bonding as a father-in-law, as a daughter-in-law, maybe a daughter and a father, whatsoever you may call it. But they share a very close bonding. And I'm trying to, connect it with what Akhilesh did to Mulayam Singh, what Akhilesh did to his uncles. I mean, I don't find there's any logic that Mulayam Singh Yadav would have asked Aparna to remain in Samajwadi Party. And if at all, why I'm saying that, if at all, he did that, Aparna, with all her audacity, her all due respects, would have agreed to it. But if she has switched her loyalty towards Bharatiya Janata Party, the BJP, which reflects rather that Mulayam even wanted that and he never stopped. I cannot comment whether he wanted that or not. I'm sorry. But then he did not stop her. Agreed. There would have been discussions with the family. That's okay. That's perfectly fine. So, people, these are the things that the entire day, I mean, it was again, yet another eventful day. Besides this, people, I would now like to speak in Hindi, and I want all of you to kindly pay attention. I have made some, points, some points in my diary for today. एक शायर होते थे उर्दू के, होते थे या होते हैं, मुझे पता नहीं है, जिन्होंने अपने एक शायरी में लिखा था
बोल, बोल के लब आजाद है तेरे। बोल, बोल मतलब बात कर, आवाज दे, बात कर। बोल के लब आजाद हैं तेरे, तेरा मुंह अब गुलाम नहीं है, मतलब तेरे होंठ जो हैं आजाद हैं। तो तू बोल, बोल के लब आजाद हैं तेरे। और मुझे आवाज पता है क्या आई? तेरा मेरा नाता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। बोल के लब आजाद हैं तेरे, और इस देश ने सुना, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। बोल के लब आजाद है तेरे, देश ने फिर सुना, हाय हाय मोदी मर जा तू। बोल के लब आजाद हैं तेरे, 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लो। बोल के लब आजाद हैं तेरे। मैं सारा आज नोट करा, आर्मी चीफ को गली का गुंडा। बोल के लब आजाद हैं तेरे, मोदी को खून की दलाली करने वाला। ये लब ऐसे ही समय पे क्यों आजाद रहते हैं? ये आज तक 2012 में, 2004 में जब ये गोधरा, सो कॉल्ड गोधरा राइट्स हुए थे, गुजरात दंगे हुए थे, ये लब तब क्यों सिल गए थे कि जब आज तक कोई ये नहीं बात करता। और क्यों नहीं करता ये मेरे समझ के बाहर है। कोई भी हो, कितने लोग हैं कितनों ने नहीं करी है, जिन्होंने करी है थैंक यू वेरी मच, बट मेजॉरिटी मैं कभी ये नहीं सुनता कि वो गोधरा के जो राइट्स थे, वो जो गुजरात राइट्स थे, वो दंगे फसाद, उसकी जड़ कहां पर थी? वो कौन लोग थे जिन्होंने वो ट्रेन की बोगी जलाई थी जिसमें कार सेवकों को जिंदा जला दिया था? मुझे याद आता है, मुझे याद आता है कि 84 के दंगों के बाद राजीव गांधी ने एक स्टेटमेंट दिया था कि जब बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है। तो क्या मैं उसको गुजरात के दंगों से रिलेट करूं? क्योंकि मेजॉरिटी कम्युनिटी तो हिंदुओं की है। तो जब वो बड़ा पेड़ हिला तो भाई धरती हिली, और धरती में थोड़ी सी कंपन हुई थी, भूचाल नहीं आया था, सिर्फ कंपन हुई थी। ये तो जिसके आज तक एक पर्टिकुलर कम्युनिटी अपनी छाती पीटती है। बोल के लब आजाद हैं तेरे, ये जो लाइनें लिखी जाती हैं, ये इतिहास में लिखी गई हैं, इनके पीछे एक बहुत बड़ी सोच काम कर रही थी, और आज भी वो सोच जिंदा है। अभी आपने देखा होगा, मैंने अपने इससे प्रीवियस वीडियो में भी बात करी है, ये छुटभैया मौलाना जो है, ये तौकीर रजा बरेलवी का। और बरेलवी जो है, ये जहां से आता है, ये बरेलवी, ये तालिबान से रिलेट करते हैं अपने आप को। इनकी सोच, इनकी जो मानसिकता है, वो तालिबान वाली है। और सलमान खुर्शीद हिंदुत्व को बोको हरम से लिंक करते हैं। तो ये जो मैं अभी आपको इसी वीडियो में मैं क्लिप के अंदर जोड़ के इसका क्लिप दिखाऊंगा, इसने क्या क्या बोला है, और मेरे ख्याल आप लोगों को सबको पता होगा, पर मैं इसको फिर ऑथेंटिकेट करूंगा कि तुम तालिबान वाली सोच रखने वाले, तुम वो लोग हो जिन्होंने मुस्लिम लीग का साथ दिया, यूपी और बिहार के मुसलमान, और आज तुम हमारे देश में रह के, जिसको तुम अब ये नया लेके आए हैं, बहुत बढ़िया है, अब ये नया लेके आए, हम बाय चॉइस हैं। तुम बाय चॉइस यहां नहीं हो। ये शातिर दिमाग तुम्हारा चल रहा था कि एक मुल्क तो हमने ले ही लिया, धीरे धीरे इस मुल्क को भी हम हथिया लेंगे, जिसके अंदर नेहरू ने तुम्हारा पूरा साथ दिया। वरना कितनी डीपीसीसी होती थी आजाद भारत में से, क्यों सरदार पटेल को पहला प्रधानमंत्री नहीं नियुक्त किया गया? क्यों केकई की तरह, क्यों कैकई की तरह नेहरू कोप भवन में, कोप भवन मतलब कि मोहनदास करमचंद गांधी, उसके पास चले गए? और सरदार पटेल अगर नहीं होते, लौह पुरुष उनको ऐसे ही नहीं कहा जाता, उसके पीछे बहुत सारे कारण हैं। जिस पार्टी में वो थे, उस पार्टी ने उनका मान सम्मान कितना किया, वो आप जाने, वो पार्टी जाने। पर क्या अगर नेहरू गृह मंत्री होते, तो जितनी रियासतें थीं इस देश की,
इस देश का जो हम नक्शा एक देखते हैं ऊपर से लेकर नीचे तक और दाएं से लेकर बाएं तक, इसके अंदर छोटे छोटे पता है कितने पाकिस्तान होते हैं? ये अफ्रीका का गणराज्य बन जाता जहां पर हर 10 किलोमीटर में एक नया कंट्री शुरू हो रहा होता। और किनके बीच हम रह रहे होते? आतंकवादियों के, बोको हरम वालों के, या ये आपका बरेलवी मानसिकता वाले मौलाना के जैसे लोगों की। हिम्मत तो देखो आप इसकी कि ये कह रहा है कि मैंने अपने नौजवानों पे कंट्रोल रखा हुआ है, कंट्रोल रखा हुआ है। अगर ये कंट्रोल अगर ये छूट गया, मैं उस दिन से डरता हूं, तो हिंदुओं को देश में सर छुपाने की जगह नहीं मिलेगी और देश का नक्शा बदल देगा। जब इसको न्यूज चैनल्स पे कन्फ्रंट किया गया तो दूसरी टोपी घुमा दी इसने कि मैं चीन को मिला लूंगा, मैं पाकिस्तान को मिला लूंगा। मैं उस संदर्भ में यह बात कर रहा था। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और ये दोनों भाई बहन जो कलंक है हमारे देश पे, जो बोझ है हमारे देश पे, इनकी पार्टी और ये उसको मौलाना को अपने साथ खड़ा करके फोटो खिंचवा रही है। बहुत बढ़िया प्रियंका वाड्रा, कीप इट अप। हम इससे ज्यादा आपसे उम्मीद भी नहीं रखते, हम नहीं रखते, हम इससे ज्यादा आपसे उम्मीद नहीं रखते। आपके भाईजान आ गए होंगे शायद वापस, कहां गए हुए थे? शायद बैंकॉक वैंकॉक, कहां जाते हैं वो? अक्सर थाईलैंड ही जाते हैं, या अब चलिए जहां भी गए थे वापस आ गए होंगे। अब दिखाइए उनको, बोलिए कि शक्ल तो दिखा दें, कम से कम 5 राज्यों के चुनाव हैं, आके कुछ तो बोलें, अपना मुंह खोलें, थोड़ा एंटरटेनमेंट ही हो जाए। तो व्यूअर्स, मेरा कहना यह है कि इसको बहुत सीरियसली लेने की जरूरत है। इसको बिल्कुल भी, जो मैंने अपने इससे पिछले वीडियो में, कल वाले वीडियो में भी एक बात बोली थी और मैंने आपको कंपैरिजन दिया था। आई गेव यू अ कंपैरिजन। 2014 में आपने ठाना और एक बटन दबाया, और 2019 के अंदर आपने वही बटन और जोर से दबाया। तो ये याद रखिए कि 2017 में जो बटन दबा था, अब की बार 2022 में वो बटन दोनों हाथों से दबना है। बुरा हाल है, इतना आसान नहीं है। हम अपने ही देश में अपने आप को जस्टिफाई करते करते मर जाएंगे और इस चीज को हमें बंद करना होगा। यह हिंदू राष्ट्र था, यह हिंदू राष्ट्र है, यह हिंदू राष्ट्र रहेगा। क्योंकि एक कम्युनिटी जो अपने आप को बड़ा फन्ने खां समझती है, जिसका यह मौलाना बकवास करता है कि हमारे देश का नक्शा बदल देगा, और उसके बाद झेप मारता है कि मैं चाइना को मिला लेता, मैं पाकिस्तान को मिला लेता, मुझे ट्रेनिंग दे दो। अब तू क्या है, पिद्दी ना पिद्दी के शोरवे। एक वहां से हैदराबाद से वो बकवास करता है, 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लो। ये याद रखना, ये सिर्फ हिंदुत्व है और ये हिंदू हैं। ये बात सऊदी अरेबिया में जाके करना, यूएई में करना, ये अफगानिस्तान में करके दिखाना, सोमालिया, यमन में करके दिखाना। ऊपर से तो 6 इंच कम हो ही जाओगे, नीचे से पता नहीं कितने टुकड़े हो जाएंगे, सिर्फ क्योंकि ये हिंदू राष्ट्र है। यहां मेजॉरिटी कम्युनिटी हिंदुओं की है। और मुझे एक बात नहीं समझ में आती कि सिर्फ और सिर्फ ये इस एक ही कम्युनिटी को प्रॉब्लम है। मेरे हिसाब से तो इनमें से जितने आजादी के बाद से हज करके आए, इनका हज ही कबूल नहीं होगा। क्योंकि हज में कुरान के हिसाब से तो अपने पैसों के अलावा उधार लिए हुए पैसों पे, सब्सिडी पे हज करना हराम है। तो ये जितने हाजी जाते थे, जो एयर इंडिया की टिकटें डिस्काउंट में लेते थे, और ये सारी जो इनको हज फैसिलिटी मिलती थी, इनमें से इसीलिए तो ये हाल है इन लोगों का कि इनका हज ही कबूल नहीं हो रहा। और हम जाते थे हिंदू अपने धामों में, तो हम पूरा पैसा अपनी जेब से आज भी खर्च करके जाते हैं। तो हाल तो बुरे हैं। तो भैया, जो तुमने बोया है तुम वो काटोगे। पर मैं एक चीज बहुत शांति प्रिय ढंग से मैं सबको बता देना चाह रहा हूं कि देखो, जब तक कोई इंसान शांत है, शांत है। जब तक, देखिए, सहनशीलता को कायरता ना समझें किसी भी कीमत पे। इतिहास में एक ट्रेलर आप देख चुके हैं। 7,000 दंगे आपने करे, 40,000 दंगे कुल हुए, उनमें भी आप ही एक ही कम्युनिटी इन्वॉल्व रही, सिर्फ एक 84 के दंगे छोड़ के।
और वो जो 84 के दंगे हुए थे वो पॉलिटिकली मोटिवेटेड थे, वो करवाए गए थे और वो एक पर्टिकुलर पार्टी ने करवाए थे, जिसके नेता आज की डेट में कोर्ट के फैसलों के बाद अंदर बंद है। तो मेरा कहना यह है कि आप हल्के में ना लें। 15 मिनट के लिए अगर पुलिस हट गई, जो हैदराबाद वाला भाईजान, 2 कौड़ी का 2 पैसे का आदमी, छिछोरा एक नंबर का, जो बकवास कर रहा था ना कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लो, ये 10 मिनट के लिए क्या 5 मिनट के लिए भी हट गई, तेरा 4 मीनार से तू सफाया हो जाएगा। तू हल्के में ले रहा है क्या? और ये दूसरा छिछोरा अपने आप को मौलाना कहता है। कौन सा ग्रंथी इस भाषा में बात करता है? कौन सा पंडित इस भाषा में बात करता है? सारा दिन रो रहे हैं एक धर्म संसद जो हुई हरिद्वार में, धर्म संसद जो हुई हरिद्वार में, उसका रेफरेंस दिए जा रहे हैं, जितने आ रहे हैं उतने वही एक ही रट के बैठे हुए हैं, एक लाइन पर। भैया तो वहां पर गिरफ्तारियां हो गई, हम लोगों ने उसको क्रिटिसाइज किया कि वो गलत था, लेकिन तुम्हारे बेशरम बकरा दाढ़ी वाले अलग अलग साइज की और अलग अलग रंग की दाढ़ियां लेके जो तुम बैठे हुए हो, किसी के मुंह से एक बार को ये नहीं निकल रहा कि ये गलत बोला है इसने। ये हाल है तुम लोगों का, दोगले किस्म के लोग हो तुम। और एक चीज मैं आज तुम सबको कह रहा हूं, तुम जितने में तुम्हारे तौकीर, ये क्या जो भी नाम है तेरा, तौकीर फौकीर जो भी है, जितने तेरे जैसे मौलाना है, ये ना समझें कि सारा मुसलमान तुम्हारी जेब में है। ये ध्यान रखियो, ट्रिपल तलाक मोदी ने खत्म करा, वरना औरतों को तुमने जूते की नोक पे रखा हुआ था। तलाके बिद्दत और ये सब क्या ड्रामा था, प्रोस्टिट्यूशन। तुम्हारा हाल ये है कि मैं मर के ऊपर जाऊंगा तो मुझे 72 हुरें मिलेंगी, वो औरत को 72 नहीं 35 मर्द क्यों नहीं, 36 मर्द क्यों नहीं मिल सकते? फिर वो तुम्हारे यहां हराम है। ये है तुम्हारी मानसिकता। काफिर कहीं भी दिखे गर्दन कलम कर दो। तुम्हारे बाप में हिम्मत है? किसको काफिर बुला रहे हो? किसको बुला रहे हो काफिर? कौन? हमारे देश में तुम काफिर हो, तुम्हारे जैसे लोग काफिर हैं जो हिंदुओं को काटने की बात करते हैं और जो हमारी सहनशीलता को हमारी कमजोरी समझ रहे हैं। किसी गलतफहमी में मत रहना, किसी गलतफहमी में मत रहना। तू कह रहा था ना मेरे लड़के, मेरे नौजवान अगर मेरे कंट्रोल से बाहर आ गए, तो कंट्रोल से तो बाहर कोई भी आ सकता है। फिर इस तरह की भाषा बोलनी बंद कर दो, बिल्कुल बंद कर दो इस तरह की भाषा बोलनी। और ये व्यूअर्स आपके लिए है, ये गंगा जमनी तहजीब, ये चूरन बहुत हो चुका, बहुत बिक चुका। आप लोग भी चाटते रहे, हम भी चाटते रहे। ये कुछ नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ एक कम्युनिटी को अपीज करने का एक छोटा सा जरिया है। कोई गंगा जमनी तहजीब नहीं है। गंगा भी हमारी है, जमुना भी हमारी है, इनका क्या लेना देना है? अगर गंगा जमुनी तहजीब हमें दिखानी है तो हम अपनी कम्युनिटी में दिखाएंगे या हम दूसरों को दिखाएंगे, लेकिन उसके संचालक हम होंगे, क्योंकि गंगा माता भी हमारी है, जमुना माता भी हमारी है। इससे इनका कोई लेन देन नहीं है। इनको ताजमहल भी दे दो, लाल किला दे दो, इनको कोई सा महल दे दो, वहां पर भी टाट का पैबंद लटका देंगे। ऐसे मौलानाओं की बात कर रहा हूं मैं पूरी कम्युनिटी को ब्लेम नहीं कर रहा हूं, लेकिन ये जो क्या नाम है इसका, अच्छा है मेरे को नाम भी याद नहीं आ रहा इसका, मेरे मुंह से नहीं निकल रहा। गंदी चीजें मुंह से निकलनी भी नहीं चाहिए जो ये स्टेटमेंट देता फिर रहा है। तो व्यूअर्स, बहुत सोचने की जरूरत है, बहुत यूनाइटेड रहने की जरूरत है। बहुत नाजुक वक्त है देश में। देखिए, बाहरी ताकतों से सीमाओं पे तो लड़ने के लिए हमारी फौज खड़ी है, हमें उसकी चिंता नहीं होनी चाहिए इतनी जितनी हमें, अगर हमें अपनी फौज का साथ देना है तो ऐसे गद्दारों से, जो अंदर लिब्रांडू, जो लुटियन वाले और ये जो इस तरह के लोग बैठे हैं, और वो जो आलू से पता नहीं मशीन में डाल के और सोना निकालने वाला पप्पू, इस तरह के लोगों से हमें बहुत सावधान रहना है, बहुत सावधान रहना है। ये चीज अपने बच्चों को भी बताइए, उनको भी सिखाइए, उनको भी समझाइए। ऐसा नहीं हो सकता कि आपके बच्चे कल को दे शुड बी टेकन बाय सरप्राइज और उनको पता ही कुछ नहीं।
हमारे देश में संविधान चलता है, संविधान से हमारा देश चलता है। जो आदमी कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो नहीं कर सकता, उसको इस देश में रहने का हक नहीं है। और किसी की धमकी में आने की जरूरत नहीं है व्यूअर्स। ये कुछ भी बोलते रहे, कुत्ते भौंकते हैं, भौंकने दीजिए, बिल्कुल परवाह करने की जरूरत नहीं है। वहां जो बाबा बैठे हैं ना यूपी में, वो अपने आप देख लेंगे। केंद्र में एक और दाढ़ी वाले बाबा बैठे हैं। और उसके अलावा सनातन समाज को अब खड़ा होना पड़ेगा। हर चीज सरकारों पे नहीं छोड़ी जा सकती, हर चीज सरकारों पे नहीं छोड़ी जा सकती। आप सड़क पे नहीं उतर सकते, आप यूनाइट तो हो सकते हैं। डेमोक्रेसी में सबसे बड़ी ताकत होती है ठप्पा। निकाल बाहर करिए इनको, पूरे देश से हटाइए इनको। केरल को दूसरा पाकिस्तान बनाने चले गए। सोचिए व्यूअर्स, सोचिए। अगर मेरी बातों को आपको लगता है दैट आई एम मेकिंग एनी सेंस, यू मस्ट थिंक इट ओवर, बिकॉज दिस इज द नॉनसेंस दे हैव बीन डूइंग फॉर लास्ट 74 years, and it is not the entire community. Let me say that again. It is just about the few bloody assholes who just try to manipulate things and they want to be in the power. That's it. सबसे नफरत करने की जरूरत नहीं है, सबसे गुस्सा होने की भी जरूरत नहीं है, पर सावधान रहना बहुत जरूरी है। कोई कुर्मी नहीं है, कोई दलित नहीं है, कोई जाट नहीं है, कोई गुर्जर नहीं है, कोई सिख नहीं है, कोई जैन नहीं है, कोई बौद्ध नहीं है, कोई कायस्थ नहीं है, कोई ओबीसी नहीं है, कोई SC ST नहीं है, कोई कुछ नहीं है। हम सिर्फ 80% है, बस इसको ध्यान रखिएगा। और ये 80% एक हो गए। छोड़िए ये मुट्ठी भर 2 4 10 मौलानाओं की। दुनिया में कोई हमारा भाग भागा नहीं कर सकता। और पिछले 7 साल में जहां हम पहुंच गए हैं, ये तो सोचा भी नहीं जा सकता था। 7 साल 8 साल पहले तो इसका तसव्वुर, उर्दू का लफ्ज है, तसव्वुर भी कोई नहीं कर सकता। तो सोचिए। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच व्यूअर्स फॉर ज्वाइनिंग मी टुडे। आई वाज एक्चुअली वेरी मच अनॉयड व्हाट एवर आई हैव नोटिस्ड ड्यूरिंग द डे। Any which ways. Oh, all right. So do subscribe, like, and share, comment my YouTube channel. This is Sajal Saxena signing off for this evening, and I shall be seeing. I'll be watching you soon. I'll be connecting with you soon tomorrow. Thank you. तुम्हें हिंदुस्तान में कहीं पनाह नहीं मिलेगी।